Good morning, 8th class. Myself, Kajal Kapil. I am your science teacher from Baba Kishan Das Public Senior Secondary School, Salana, District Fatehgarh Sahib. Students, today we are going to start chapter number 2 of your science book, which is Microorganisms, Friend and Foe. Students, आज हम chapter number 2 start करेंगे जिसका नेम है Microorganisms, Friend and Foes. So our first topic is microorganisms. These are the small organisms or microbes and are so small in size that they cannot be seen with naked eyes. These can be seen only under the microscope. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रेड्स पे जो फंगस होती है उसे सिर्फ हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख सकते हैं. Next we have classification of microorganisms. Basically, the microorganisms are classified into 4 main groups which are as follows: bacteria, fungi, protozoa and algae. ये main groups हैं microorganisms के. Next we have our next topic which is virus. Viruses are also microscopic microorganisms. They reproduce inside the cells of host organisms which may be bacterium, plant or animal. Virus are shown in the figure. Virus हमारे पास microorganisms हैं, वो किसी भी host organism के cells के inside या bacterium या plant और animals पे grow करते हैं. The picture of the virus is as shown here. Next we have images of microorganisms. Here are some of the microorganisms which are shown in the picture. First we have the bacteria, second is algae, third is protozoa and next is fungi, and these are the types of these microorganisms which are shown in the picture. You can see them. Next we have next topic, that is bacterial diseases. Common ailments like cold, flu and cough are caused by the viruses, and serious diseases like polio and chickenpox are also caused by the viruses. जो common diseases हैं जैसे cold, flu, cough वो वायरस से प्रोड्यूस होती हैं, और serious diseases like polio and chickenpox वो भी वायरस से ही प्रोड्यूस होती हैं. Diseases like dysentery and malaria are caused by the protozoa. Dysentery और malaria disease प्रोटोजोआ से प्रोड्यूस होती है. टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर आल्सो बैक्टीरियल डिसीजेज, ये भी बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस होती हैं. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, और सम आर मल्टी सेल्यूलर सच एज फंगी और एल्गी. तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ they may be single cell, that is unicellular, और they may be multicellular. जो यूनिसेल्युलर हैं वो हैं बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, और जो मल्टीसेल्युलर हैं वो हैं फंगी और एल्गी. नेक्स्ट वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं. Microorganisms can live under every type of environment ranging from ice cold climate to hot springs and deserts. Microorganisms environment में किसी भी जगह पे रह सकते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में भी, डेजर्ट में भी और हॉट स्प्रिंग्स में भी. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स और ह्यूमन्स की बॉडी में इनसाइड भी रह सकते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे ग्रो करते हैं. नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. सम ऑफ देम आर वेरी बेनिफिशियल एंड दे आर एज फॉलोज. First we have friendly microorganisms. They are used in cleaning up of the environment. इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, द ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया.
बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिक वेस्ट को यूजेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। दीज आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। अब जब हम मिल्क को कर्ड से कन्वर्ट करते हैं वो भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से ही पॉसिबल है। बैक्टीरिया ऑल्सो यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। चीज़, पिकल और फूड आइटम्स बनाने के लिए भी हम बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बिकॉज यीस्ट बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द बबल्स ऑफ गैस फिल इन द डो एंड इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। तो जो इडली और डो का इडली का डो होता है उसमें भी हम यीस्ट बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। इस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट वी हैव कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड और विनेगर। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो इस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कमर्शियल लेवल में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं दैट इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। नेक्स्ट वी हैव योर होमवर्क students, as we have discussed some of the topics, then now we will discuss the questions that are related to that topics. First we have multiple choice question and the first question is the bread of idli dough rises because of options are heat, grinding, growth of yeast cell and kneading, and the answer is growth of yeast cell. Second we have the process of conversion of sugar in alcohol is called nitrogen fixation, molding, fermentation and infection, and the answer is fermentation because हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि वो प्रोसेस जिसमें हम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप लोगों ने खुद अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। नेक्स्ट वी हैव वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट इज कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विथ नेक्ड आइज, इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेक्ड आई से देख सकते हैं, अगर नहीं तो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं। एंड द आंसर इज नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दे कैन बी ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। Next we have the next question. Second question is what are the major group of microorganisms? Microorganisms के major groups क्या हैं? And the answer is bacteria, algae, fungi and protozoa. Next question is name the diseases caused by viruses. We have recently studied about this. The common ailments like cold, flu and cough and serious diseases like polio and chickenpox are the caused by the viruses. Next question is Ajit took 1.5 kg मैदा and added some sugar and mixed with warm water. अजीत ने 1.5 kg मैदा लिया, उसने उसमें शुगर ऐड की और उसमें वार्म वाटर ऐड किया। He added small amount of yeast powder and need to make a soft dough. उसने उसमें yeast powder डाला और उसने एक सॉफ्ट डो रेडी किया। वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? 2 hours के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया? ऑल्सो राइट रीजन ऑफ योर आंसर। Answer is the presence of sugar and yeast increases the growth of yeast cell. जब हम शुगर ऐड करते हैं तो जो yeast cell है उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है which produces carbon dioxide gas, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं। The bubbles of carbon dioxide gas fill in the dough and make it rise. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डो में फिल हो जाती है जिससे उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। So students, you have to write these questions in your fair notebook and learn them. So students, I hope that you all have understood the concept which we have discussed in this video. Thank you students. Have a nice day.